ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੈਸਟ ਟਿਊਟਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 9th ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੈਟਰ। ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लो ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਹਿੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸ ਮੈਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ Google Meet ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ 6:45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ Google Meet ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਐਪ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੈਸਟ ਟਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਨਲੀ 349 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ WhatsApp ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ क्वेश्चन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। नेक्स्ट, इन वर्णों को जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा? आराम। नेक्स्ट, शेर शब्द का सही स्त्रीलिंग कौन सा सही है? शेरनी। नेक्स्ट, बेटा शब्द का उचित बहुवचन बनाए? बेटे। नेक्स्ट, कबीर ने सच्चा साधु किसे कहा है? जो सच बोलता है। नेक्स्ट, जीवन की बाधाओं को देखकर वीर पुरुष क्या करते हैं? घबराते नहीं। नेक्स्ट, अलगू ने अपना बैल किसको बेचा था? समझू साहू को। नेक्स्ट, पाजेब कहाँ मिली थी? बुआ के पास। नेक्स्ट, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। ऐसा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कबीर जी ने तन को क्या कहा है? पंछी। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ कबीर तन पंछी भया। नेक्स्ट, कवि के अनुसार तन क्या करता है? उड़ जाता है। जहां मन तहां उड़ी जाई। नेक्स्ट, तन शब्द का क्या अर्थ है? शरीर। नेक्स्ट, फल शब्द का क्या अर्थ है? परिणाम। नेक्स्ट है जी अपने को ईमान बेचना मुहावरे का क्या अर्थ है? बेईमानी करना। नेक्स्ट, ऊंची दुकान फीका पकवान लोकती का क्या अर्थ है? केवल ऊपरी दिखावा करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर लिखें। फर्स्ट अपने को व्याकरण के मुख्य रूप से 2 अंग माने जाते हैं। हाँ। नेक्स्ट, डैश भाषा की लिपि रोमन है, अंग्रेजी। नेक्स्ट, वर्ण विच्छेद करें, डाकखाना कैसे लिखेंगे? इस तरीके नाल तुसी डाकखाना लिख देना। नेक्स्ट अपने को शुद्ध शब्द लिखें। आंख, पत्थर। आंख नूं लिखना सी इस तरीके दे नाल। पत्थर ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ, ਲਿੰਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੇ। अभिनेता, अभिनेत्री। माली, मालिन। नेक्स्ट, वचन परिवर्तन करे। तिथि, तिथियां। मछली, मछलियां। ਇਹ ਚੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਆ। फर्स्ट अपने को सामान्य आदमी कैसा होता है? सामान्य आदमी बड़े काम को देखकर घबरा जाता है। नेक्स्ट, प्रेमचंद में कैसी धुन थी? इसका आंसर है जी उसमें आगे बढ़ने की अजब धुन थी। नेक्स्ट, किस में कुछ नया सीखने और समझने ललक रहती है? इसका आंसर है जी अपने को उत्साही विद्यार्थी में कुछ नया सीखने और समझने की ललक रहती है। क्योंकि लाइन जी इतों चलती आ रही है, देखो ये उत्साही विद्यार्थी कठिन प्रश्नों पर पहले हाथ डालता है, उसमें कुछ नया सीखने और समझने तथा कठिन प्रश्नों से जूझने की ललक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को सामान्य शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर है जी अपने को साधारण। नेक्स्ट, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ शीर्षक बना सकते हो साहसी व्यक्ति। नेक्स्ट अपने को
प्रश्नों के उत्तर लिखें। अकबर ने कितने वर्ष की उम्र में अपने पिता के दुश्मन को हराया? 13 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट, शिवाजी पर स्त्री को मां के समान मानते थे, सही। नेक्स्ट, आबाजी सोनदेव कौन थे? शिवाजी का एक सेनापति था। नेक्स्ट, ईसा की शहादत ने सिख धर्म को अमर बना दिया, गलत। नेक्स्ट अपने को भाग ख किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट अपने को अलगू चौधरी ने क्या फैसला सुनाया? ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਪੰਜੇਬ ਕਹਾਂ ਸੇ ਔਰ ਕੈਸੇ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ अलगू चौधरी ने अपना क्या फैसला सुनाया? अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुनाया कि खाला जान को माहवारी खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। अगर उनको खर्चा देना मंजूर ना हो तो संपत्ति की रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास पाजेब कहाँ और कैसे मिली? पाजेब मुन्नी की बुआ के बास्केट की जेब में मिली जो उनके साथ भूलकर चली गई। नेक्स्ट अपने को है गया क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਂ के उत्तर ਦੇ 5-5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੱਡੇ क्वेश्चन ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ करजनवाली को मदन लाल ढींगरा ने क्यों मारा? करजनवाली को मदन लाल ढींगरा ने इसलिए मारा क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे अधिकारियों ने हजारों भारतीयों को गुलाम बनाया तथा बिना कारण के ही मार दिया। नेक्स्ट, जीवन में असफलताएं मिलने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है? साहसी मनुष्य तब भी वह अपने कदम पीछे नहीं हटाते जबकि असफलता कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियारे का जाल बुन रही। नेक्स्ट, शिवाजी किस तरह सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे? शिवाजी ऐसे सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां सुख शांति एवं भाईचारा हो, जहां पर स्त्री की भी मां के जैसा सम्मान हो, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म समान हो, मंदिर मस्जिद दोनों का सम्मान हो और कोई भी आतताई ना हो। नेक्स्ट अपने को बड़े प्रश्न। पहला अपने को पंच परमेश्वर कहानी का क्या उद्देश्य है? पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य है कि मानव जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं और उनका हल भी मानव अपनी बुद्धि से करता है। पंचों में परमेश्वर का निवास होता है। न्याय करते समय मित्र या दुश्मन नहीं देखा जाता, ना ही अपना पराया देखा जाता है। उस वक्त केवल सच का साथ दिया जाता है। पंचों की वाणी और फैसला परमेश्वर की वाणी और फैसला होता है। यही पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य है। सेकंड क्वेश्चन है आशुतोष का चरित्र चित्रण कीजिए। पहला अपने को हठी बालक पॉइंट है आशुतोष अपनी बहन को पाजेब मिलने पर आप भी साइकिल लेने का हठ करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बहन के प्रति लगाव। बहन को पाजेब पहन देखकर बहुत खुश होता है। आसपास पाजेब दिखाने पर वह गौरव महसूस करता है। नेक्स्ट व्यक्तिगत रुचि। आशुतोष क्योंकि एक बालक के चरित्र को दर्शाता है इसलिए उसे भी बच्चों की तरह पतंग उड़ाने व साइकिल चलाने का शौक है। नेक्स्ट उद्दंड स्वभाव। कहानी में आशुतोष के माता पिता मारते पीटते हैं तो वह अपराध न होने पर भी छुन्नू का नाम लेता है। इस तरह आशुतोष उद्दंड स्वभाव का भी दिखाई देता है। आशुतोष का चरित्र पूर्ण रूप से बाल मनोविज्ञान से प्रभावित है। नेक्स्ट अपने को साहसी व्यक्ति के कोई 5 गुण लिखें। साहसी व्यक्ति विपत्ति के आने पर घबराता नहीं बल्कि साहस से उस विपत्ति को हराने के लिए आगे आता है। नेक्स्ट पॉइंट वह हमेशा असफलताओं से सीखकर दोबारा सफल होने का प्रयास करता है। नेक्स्ट साहसी व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट साहसी व्यक्ति ना तो अपने उद्देश्य की तुलना पड़ोसी के उद्देश्य से करता है और ना ही अपनी चाल को पड़ोस की चाल को देखकर मध्यम बनाता है। नेक्स्ट साहसी व्यक्ति हमेशा यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी भी खत्म ना होने वाली चीज है। नेक्स्ट है जी अपने को आपको शहीद मदन लाल ढींगरा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? मदन लाल ढींगरा का सारा जीवन एक प्रेरणा है। संपन्न परिवार से होने पर भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों को
वे नहीं भूले। भारतीयों पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए उन्होंने कई क्रांतिकारी लोगों से संपर्क किया। वे बहुत हिम्मती थे। करजन वाली को मारकर भी वे वहां से भागे नहीं। मदन लाल ढींगरा उच्च दर्शकों के स्वामी थे। वे भारतीय संस्कृति के मूल्यों का अनुपालन करना भी खूब जानते थे। मदन लाल ढींगरा ने कहा कि गुलामी राष्ट्रीय देवता का अपमान है। मैं तब तक बार बार जन्म लेना चाहूंगा जब तक भारत स्वतंत्र न हो जाए। इसलिए हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने मन में देश प्रेम रखना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट विच अपने को शिवाजी का सच्चा स्वरूप पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चे स्वराज्य से ही प्रजा का कल्याण हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को भले ही वह बड़े से बड़े पद का अधिकारी हो, उसे कोई भी नीच या घृणित कार्य नहीं करना चाहिए, पर स्त्री को मां के समान मानकर उसका आदर सम्मान करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कोई भी घृणित कार्य नहीं करने दिया जाना चाहिए, अन्यथा वह दंड का अधिकारी हो सकता है। मनुष्य को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। किसी के भी धार्मिक स्थान अथवा धार्मिकों को किसी प्रकार की भी क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। मनुष्य को अपने अधिकार क्षेत्र की कभी भी उल्लंघना नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट अपने को लेटर्स आ जाएंगे। पहली अपने को अपने फुफेरे भाई को राखी भेजते हुए पत्र लिखे। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਛਾਤਰਾਵਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਹੈ ਇਹ, ਸਰਸਵਤੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਨਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। डेट पा दो। प्रिय अनुज खुश रहो, मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी सकुशल होंगे। आज से 15 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार है। मैं उन दिनों स्कूल की ओर से शैक्षिक भ्रमण के तहत आगरा जा रही हूँ। तुम्हें राखी बांधने के लिए नहीं आ सकती, इसका मुझे भी खेद है। मैं स्नेह तुम्हें राखी भेज रही हूँ, इसे स्वीकार करना और निश्चित समय अनुसार मेरी ओर से छोटी बहन आकृति से बंधवा लेना। मैं वादा करती हूँ कि आगरा से आने के बाद मैं तुम्हें मिलने जरूर आऊंगी और तुम्हारे लिए कोई ना कोई मैं उपहार भी लेकर आऊंगी। मेरी ओर से बुआ जी व फूफा जी को प्रणाम कहना, तुम्हारी बहन कमलदीप। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। नेक्स्ट अपने को इम्पोर्टेंट लेटर, अपनी माता जी को वार्षिक परिणाम का विवरण देते हुए पत्र लिखें। वही एड्रेस ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हो। आदरणीय माता जी प्रणाम, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी कुशल होंगे। वार्षिक परीक्षाएं समाप्त होने के बाद 10 दिन के लिए हमारा NSS का कैंप लग गया था। कल ही कैंप खत्म हुआ और आज सुबह ही मेरा वार्षिक परीक्षा का नतीजा आ गया। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हर बार की तरह मैं इस बार भी पूरे स्कूल में 8वीं कक्षा में प्रथम आई हूँ। गणित, विज्ञान और संस्कृत विषयों में तो मेरे 100% अंक आए हैं। यह सब आपके और पिताजी के स्नेह और आशीर्वाद का फल है। चूंकि अब मैं 9वीं कक्षा में हो गई हूँ, मुझे नई किताबें, कापियां इत्यादि खरीदनी है और मित्र मुझसे स्कूल में प्रथम आने की पार्टी भी मांग रहे हैं। अतः आप मुझे 2000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजने का कष्ट करें। पिताजी को प्रणाम व रिदम को ढेर सारा प्यार देना, आपकी लाडली चावी। नेक्स्ट है जी अपने को अनुच्छेद लिखे। इन्हां चों कोई एक लिखना तुसी। वैसे मेन जड़ा हैगा ये दो ही आंदे हुंदे तकरीबन ज्यादा। नए स्कूल में मेरा पहला दिन और पुस्तकालयों के लाभ। पहला अपने को पुस्तकालय के लाभ। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है जहां हम विभिन्न महापुरुषों, विद्वानों, आलोचकों ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਏ ਸਕੂਲ में मेरा पहला दिन, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੈਂਪਲ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ 5 पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। नेक्स्ट अपने को भारत देश मेरी आन बान अते शान है। भारत देश मेरी आन बान और शान है। नेक्स्ट अपने को संतोख का फल मिठा होता है, सबर का फल मीठा होता है। नेक्स्ट सानू प्रभु विच विश्वास रखना चाहिए है।
हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट, माता पिता की सेवा करना सब तो बड़ा धर्म है। माता पिता की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। नेक्स्ट, मेहनती कदे काम तो जी नहीं चुराता, मेहनती कभी काम से जी नहीं चुराता। नेक्स्ट, सानू कदे किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, पंचायत के मुखी नू सरपंच कहा जाता है, पंचायत के मुखिया को सरपंच कहा जाता है। नेक्स्ट, लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ सुंदर लिखाई ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਨੰਬਰ ਮਿਲਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੋਹਾ, ਸਾਧੂ ਭੂਖਾ ਭਾਵ का धन का भूखा नाहे। ਇਹਦੇ ਚ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, साधु किसका भूखा होता है, भाव का। नेक्स्ट अपने को, कबीर ने वास्तविक रूप से विद्वान किसे कहा है, जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़े हो। नेक्स्ट, साधु की क्या नहीं पूछनी चाहिए, जाति। नेक्स्ट, कौन अधिक मूल्यवान है, तलवार। नेक्स्ट, जग में लोगों ने क्या पढ़ा है, पोथियां। नेक्स्ट, मुआ शब्द का क्या अर्थ है, मर गया। नेक्स्ट, निम्न में से प्रेम क्या है, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, पोथी शब्द का पर्यायवाची, किताब। नेक्स्ट, ज्ञान शब्द का विलोम शब्द क्या है, अज्ञान। नेक्स्ट, पंडित शब्द का लिंग बदलो, पंडिताइन। नेक्स्ट, आखर शब्द का तत्सम रूप क्या है, अक्षर। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन है, धीरज का संदेश देते हुए कबीर ने क्या कहा है। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आप अगे जाके डिस्कस करते हैं, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे, कहानी में यह कथन किसका है, खाला का। नेक्स्ट, पंच की जुबान से खुदा बोलता है, कहानी में यह वाक्य किसने कहा, जुम्मन शेख ने। नेक्स्ट, पंच परमेश्वर कहानी के आधार पर मित्रता का मूल मंत्र क्या है, विचार मिलने चाहिए। नेक्स्ट, अलगू चौधरी ने समझू साहू को बैल कितने रुपए में बेचा, 150 रुपए में। नेक्स्ट, बूढ़ी खाला ने पंच किसको बनाया, अलगू चौधरी। ऊसर शब्द का क्या अर्थ है, बंजर। काया पलट शब्द का क्या अर्थ है, बहुत बड़ा परिवर्तन होना। ग्राम शब्द का तद्भव रूप क्या है, गांव। समझू साहू ने जब अलगू चौधरी से बैल लिया तब बैल को गंभीर बीमारी थी, गलत। जुम्मन की पत्नी का नाम करीमन था, सही। जितना पैसा इसके पेट में झोंक चुके उतने में तो डैश मोल ले लेते, गांव। नेक्स्ट, तो कोई यह थोड़े समझा था कि तुम मौत से लड़ कर आई। नेक्स्ट अपने को ग्रामर वाले, फर्स्ट अपने को, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें किस प्रकार के स्वर कहा जाता है, पलुत स्वर। निम्न में से कौन से स्वर अयोग्य व हैं, अ और अ। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, 11। भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण। किसी भाषा के व्यवस्थित वर्णों को समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। जिन्ने भी क्वेश्चन है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ, तो इसे करके मैं सारी ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣੀ ਨਾ ਪਵੇ। उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार हैं, 3। निम्न में से व्यंजन के भेद कौन से हैं, स्पर्श, अंत्यस्थ और ऊष्म। नेक्स्ट, किसी भी भाषा के वर्णों को 2 भागों स्वर और व्यंजन में बांटा जा सकता है, सही। नेक्स्ट, हिंदी में आगत स्वर का प्रयोग नहीं होता, गलत। नेक्स्ट अपने को, भाषा और लिपि, व्याकरण के मुख्य अंग कितने हैं, 3। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है, ध्वनि। नेपाली और मराठी भाषाओं की लिपि कौन सी है, देवनागरी। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लिपि। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, भाषा। रचना की दृष्टि से भाषा की आधारभूत इकाई क्या है, वर्ण। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। दाईं से बाईं और लिखी जाने वाली भाषा का नाम बताओ, उर्दू। निम्न में से कौन सी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, जर्मन। हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताओ, देवनागरी। 5-10 किलोमीटर के बाद बोली का रूप कुछ
बदल जाता है, सही। एक उपभाषा के क्षेत्र में कई बोलियां नहीं हो सकती, गलत। नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने अपने कोल भाषा के कितने रूप हैं। ये 5 क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ इंपोर्टेंट ने, इस तो इलावा भी हैगे आ, पर ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ इंपोर्टेंट ने ਆਪਾਂ ਉਹ देख ਲੈਂਦੇ ਆ। फर्स्ट अपने को भाषा के कितने रूप हैं, उनके नाम बताओ। भाषा के मुख्य 3 प्रकार हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इस 3 रूपों का उपयोग करके आप आपके विचारों को सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को मौखिक और लिखित भाषा किसे कहते हैं। मुंह से बोलने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा वह भाषा है जिससे हम अपनी भावनाओं एवं विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लिखित शब्दों का सहारा लेते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण की परिभाषा लिखो। किसी भी भाषा को सही तरीके से और शुद्ध रूप से बोलने के लिए, लिखने के लिए और समझने के लिए कुछ नियम होते हैं और उन्हीं नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें उस भाषा को लिखने, बोलने और समझने के लिए नियम संग्रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोली वाला। बोली किसे कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 650 बोलियां बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट अपने को इंपोर्टेंट मुहावरे, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ 15 ਤੱਕ ਐਂਡ ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਤੱਕ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 20 ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੋਕਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੋਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਤੀਆਂ ਟੋਟਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। सच्चे बहादुर कदे भी युद्ध विच पिठ नहीं दिखाते। सच्चे बहादुर कभी भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाते। माता पिता को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। मेहनती आदमी हमेशा सफल होता है। परिश्रमी आदमी सदैव सफल होता है। नेक्स्ट ये है अपने को नए स्कूल में मेरा पहला दिन। इस तो बाद देख लेने चैप्टर वाइज जेडे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पहला अपने को जेड़ा कबीर दोहावली, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने को कबीर ने सच्चा साधु किसे कहा है। कबीर ने सच्चा साधु उसे कहा है जो भाव का भूखा होता है, जिसे धन दौलत का लालच नहीं होता। नेक्स्ट धीरज का संदेश देते हुए कबीर ने क्या कहा है। कबीर जी ने कहा है कि सभी काम धीरज धारण करने से होते हैं, इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में धीरज रखना चाहिए। जिस प्रकार अनुकूल ऋतु आने पर वृक्ष पर फल अपने आप आ जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सभी कार्य भी सही समय आने पर हो जाते हैं। नेक्स्ट कबीर ने समय के सदुपयोग पर क्या संदेश किया है। कबीर जी ने समझाया है कि मनुष्य को अपना काम कल पर नहीं टालना चाहिए, अपितु तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि कल का पता नहीं होता, भविष्य तो सदा अनिश्चित होता है। नेक्स्ट सूरदास के पद। यशोदा श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही है। झूला जलाते हुए, दुलारते हुए, पुकारते हुए तथा कुछ गाते हुए सुला रही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट, श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं। माखन रोटी। नेक्स्ट अपने को चैप्टर कर्मवीर। जीवन में बाधाओं को देखकर वीर पुरुष क्या करते हैं। कभी घबराते नहीं, कठिन से कठिन काम भी कर लेते हैं। सच्चे कर्मवीर व्यक्ति समय का उपयोग किस प्रकार करते हैं। वे व्यर्थ की बातों में अपना समय नहीं गवाते। कवि ने कर्मवीर व्यक्ति के कौन कौन से गुण इस कविता में बताए हैं। कवि ने कर्मवीर व्यक्ति के परिश्रमी, निडर, समय का सदुपयोग करने वाला, कठिन से कठिन स्थिति का सामना करने वाला तथा अपनी सहायता समय करने वाला जैसे गुण बताए हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट मुहावरे भी आ जाते हैं इस चैप्टर के विचों। मुंह ताकना, दूसरों पर निर्भर होना। कर्मवीर व्यक्ति कभी भी किसी काम के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकते। जी चुराना, काम से बचना। हमें कभी भी काम से नहीं जी चुराना चाहिए। नेक्स्ट अपने को नींव की ईंट चैप्टर। नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि दुनिया क्या देखती है। दुनिया इमारत की चमक दमक देखती है, उसका ऊपर का आवरण देखती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट, इमारत का होना ना होना किस बात पर निर्भर करता है। उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, ईसा की शहादत ने किस धर्म को अमर बना दिया।
ईसाई धर्म को? किसकी हड्डियों के दान से वृत्रअंसार किसकी हड्डियों के दान से वृत्रासुर का नाश किया? महर्षि दधीचि की हड्डियों के दान से वृत्रासुर का नाश किया। नेक्स्ट, नींव की ईट पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਆਨਸਰ ਦਾ। ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ। नेक्स्ट अपने को नींव की ईट पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। सत्य सदा ही शिवम होता है, पर वह सदा सुंदरम हो यह आवश्यक नहीं। सत्य कठोर होता है, कठोरता तथा भद्दापन एक साथ जन्म लेते हैं तथा एक साथ जीते हैं। नेक्स्ट, नए समाज के निर्माण के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? ਇਹ क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ याद कर लेना। नेक्स्ट अपने को आज देश को कैसे नौजवानों की जरूरत है पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। नेक्स्ट अपने को चैप्टर शिवाजी का सच्चा स्वरूप। शिवाजी कौन थे? प्रसिद्ध मराठा वीर थे, उनका पूरा नाम शिवाजी राजे भोंसले था। मोरोपंत कौन था? मोरोपंत शिवाजी के राज्य में एक पेशवा था। आवाजी सोमदेव कौन था? शिवाजी का सेनापति। आवाजी सोमदेव ने शिवाजी को सबसे बड़े तोहफे के रूप में बारे में क्या बताया? नेक्स्ट, शिवाजी पर स्त्री को किस के समान मानते थे? मां के समान। नेक्स्ट, शिवाजी ने अपने सेनापति को किस प्रकार डांट फटकार लगाई और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तेरे विच इंपोर्टेंट जेड़े मुहावरे ने सिर पर चढ़ाना। नेक्स्ट अपने को चैप्टर मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा का जन्म कब हुआ? 1887 को एक संपन्न परिवार में हुआ। मदन लाल ढींगरा को लाहौर कॉलेज की पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी? देशभक्ति की भावना के कारण। वे इंग्लैंड में कौन सी पढ़ाई करने गए थे? मैकेनिकल इंजीनियर। करजन वाली कौन था? स्टेट ऑफ इंडिया का सचिव सलाहकार। करजन वाली को मदन लाल ढींगरा ने क्यों मारा? आपको शहीद मदन लाल ढींगरा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? ये ਉਹਦਾ आंसर है जी। इंपोर्टेंट मुहावरे ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मौत के घाट उतारना और ढेर करना। नेक्स्ट अपने को चैप्टर पांजेब। मुन्नी के लिए पांजेब कौन लाया? बुआ लेकर आई थी। लेखक की पत्नी को पांजेब चुराने का संदेश सबसे पहले किस पर हुआ? घर के नौकर बंशी पर। आशुतोष को किस चीज का शौक था? पतंग उड़ाने का। गुम हुई पांजेब कहाँ से मिली? बुआ ने बास्केट से गुम हुई पांजेब निकाल कर दी। लेखक को आशुतोष पर पांजेब चुराने का संदेह क्यों हुआ? पांजेब कहाँ और कैसे मिली? इंपोर्टेंट मुहावरे दे विच खुशी का ठिकाना ना रहना और मुंह फुलाना। नेक्स्ट चैप्टर हिम्मत और जिंदगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंपोर्टेंट देख लेने हैं। सुख का संवाद किन लोगों को अधिक प्राप्त होता है? अकबर ने कितने वर्ष की उम्र में अपने पिता के दुश्मन को हराया? 13 वर्ष की। महाभारत का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? कौरवों और पांडव के मध्य। साहसी व्यक्ति की पहली पहचान क्या है? पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेखक के अनुसार साधारण जीव कौन से लोग होते हैं? जो लोग अड़ोस पड़ोस को देखकर चलते हैं वे साधारण जीव होते हैं। नेक्स्ट, जीवन में असफलताएं मिलने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है? ये क्वेश्चन ਅਸੀਂ पहले ही कर चुके हैं। साहसी व्यक्ति के कोई 5 गुण। नेक्स्ट, जुम्मन शेख की गाढ़ी मित्रता किसके साथ थी? अलगू चौधरी के साथ। बूढ़ी खाला ने पंच किसको बनाया था? चौधरी को। अलगू ने अपना फैसला किसके पक्ष में दिया? बूढ़ी खाला के पक्ष में। पंच परमेश्वर की जय जयकार किस लिए हो रही थी? सच्चे न्याय के लिए। अलगू ने पंच बनने के झमेले से बचने के लिए बूढ़ी खाला से क्या कहा? नेक्स्ट, अलगू चौधरी ने अपना फैसला क्या सुनाया? ये भी पहला से डिस्कस कर चुके हैं। अलगू चौधरी से खरीदा हुआ समझू साहू का बैल किस कारण मरा? मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी होगी। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? पंच परमेश्वर कहानी का क्या उद्देश्य है? भी डिस्कस कर चुके हैं पहला। इंपोर्टेंट मुहावरे दे च मुंह ना खोलना, राह निकालना, मुंह खुलवाना, लहू सूखना, हाथ दो बैठना, फूला ना समान। नेक्स्ट जेडे अपने को व्याकरण दे कुछ लास्ट विच इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा और लिखित भाषा 2 रूप होते हैं इनके। व्याकरण के मुख्यतः कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे लघु इकाई वर्ण। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि। हिंदी की लिपि देवनागरी। पंजाबी की लिपि गुरमुखी। रोमन लिपि किस भाषा की है? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन भाषा की है। बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाने वाली किसी एक भाषा और लिपि का नाम लिखिए। भाषा है नेपाली, मराठी, हिंदी। लिपि है देवनागरी। दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली किसी एक भाषा और लिपि का नाम लिखें। भाषा है हमारे पास अरबी, फारसी, उर्दू। लिपि है फारसी। नेपाली और मराठी भाषाओं की लिपि कौन सी है? नेपाली और मराठी भाषाओं की लिपि देवनागरी। सो ये सी साडे कोल हिंदी दे all important question, all important essay, letter
ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦੇ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਜਾਓ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ ਫੈਜ਼ੈਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।